نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم مرکب نعت منعوت کریں گے۔ اسے صفت اور موصوف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرکب کسی بھی اسم کی صفت کو واضح کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صالح لڑکا، محنتی لڑکا، خوبصورت گھر، ان سب چیزوں کے اندر ایک اسم ہے اور اسے ایک اسم صفت آ کر اس کی صفت کو واضح کرتا ہے یا اظہار کرتا ہے اس کی صفت کا۔ اب ہم لیتے ہیں خوبصورت گھر۔ اسے عربی میں کیسے لکھیں گے؟ جمیل مطلب خوبصورت، بیت مطلب گھر۔ عربی زبان میں اسم پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، لہذا ہم جمیل کو بعد میں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نعت منعوت لکھا جاتا ہے مگر اصل میں منعوت پہلے آتا ہے اور نعت بعد میں آتی ہے۔ اب ہم بیتون کو ذرا لکھ لیتے ہیں۔ یہ غیر معین ہے اور اس کی نعت جمیل یہ بھی غیر معین ہے۔ اگر اسے معین کرنا ہے تو ال لگا دیں گے، کیا بنے گا؟ البیتو۔ یاد رکھیے کہ نعت ہمیشہ اپنے منعوت کی پیروی کرے گی، لہذا البیتو کی نعت جمیل نہیں آ سکتی، اسے معین ہونا ہوگا، الجمیل آئے گی۔ یہ ہو گیا واحد۔ اگر مثنیٰ کرنا ہے تو بیتون کو بیتانی کر دیں گے، مطلب دو گھر۔ نعت بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے جمیل سے جمیلانی ہو جائے گی، بیتانی جمیلانی مطلب دو نئے گھر۔ اگر اسے معین کر لے البیتانی تو نعت بھی پیروی کرتے ہوئے الجمیلانی ہو جائے گی، مطلب دو نئے گھر۔ اب اگر جمع کر لے تو بیتون کی جمع بیوتن ہے، یہ تکسیر جمع ہے، اور جمیلون کی جمع جمیلونہ ہے، یہ سالم جمع ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اصول عاقل اور غیر عاقل کا یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو 5ویں لیسن میں یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ عاقل انسان، ملائکہ اور جنات، یہ 3 عاقل ہوتے ہیں، باقی سارے غیر عاقل ہوتے ہیں۔ اور غیر عاقل کے لیے ایک اصول ہے کہ اس کی جمع واحد مؤنث میں آتی ہے، واحد اور مؤنث، واحد مذکر نہیں، واحد مؤنث، لہذا بیوتن کی جو نعت آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی، مطلب جمیلتن آئے گی۔ تو ہم جمیلونہ سے بدل کے اس کے جمیلتن کر دیتے ہیں۔ اگر اسے معین کر لے ال لگا دے البیوتو تو الجمیلتو ہو جائے گی، نعت بھی واحد مؤنث آتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ہو گیا مذکر۔ اب اگر ہمیں مؤنث بنانا ہے، کیونکہ بیتون اسم ذات ہے اس لیے اس کا مؤنث بن نہیں سکتا ہے، لہذا ہم ایک دوسرا لفظ مدرستن لیتے ہیں۔ نعت پیروی کرے گی، جمیلن اسم صفت ہے اس لیے اس کا مؤنث بن سکتا ہے، لہذا جمیلن سے جمیلتن ہو جائے گی۔ اگر مدرستن کو معین کر لے المدرستو کر لے تو نعت پیروی کرتے ہوئے الجمیلتو ہو جائے گی۔ اگر 2 مدرسے کہنے ہیں تو مدرستانی، نعت پیروی کرتے ہوئے جمیلتانی ہو جائے گی۔ اگر مدرستانی کو معین کر لے المدرستانی کر لے تو نعت بھی پیروی کرتے ہوئے الجمیلتانی ہو جائے گی۔ اگر جمع کر لے مدرستن کو تو مدرساتن، نعت پیروی کرتے ہوئے جمیلاتن ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی غیر عاقل کا اصول آ رہا ہے، جمیلاتن سے جمیلتن ہو رہا ہے، واحد مؤنث۔ اگر اسے معین کر دیا جائے المدرساتو کر دیا جائے تو نعت پیروی کرتے ہوئے الجمیلتو ہو جائے گی، لہذا غیر معین اور معین ہم نے مؤنث میں بھی دیکھ لیا، یہ سارے مرفوع ہیں۔ اگر انہیں منصوب کیا جائے، مطلب بیتن کو بیتن کیا جائے تو جمیلن بھی جمیلن ہو جائے گی۔ البیتو کو البیتا کیا جائے تو الجمیلو الجمیلہ ہو جائے گا۔ مدرستن کو مدرستن کیا جائے تو جمیلتن بھی جمیلتن ہو جائے گی۔ المدرستو کو المدرستا کیا جائے تو الجمیلتو بھی الجمیلتا ہو جائے گی۔ بیتانی کو بیتینی کیا جائے تو جمیلانی جمیلینی ہو جائے گی۔ البیتانی کو البیتینی کیا جائے تو الجمیلانی الجمیلینی ہو جائے گی۔ مدرستانی کو اگر مدرستینی کیا جائے تو جمیلتانی جمیلتینی ہو جائے گی۔ المدرستانی کو المدرستینی کیا جائے تو الجمیلتانی الجمیلتینی ہو جائے گی۔ بیوتن کو بیوت
बुयूतन किया जाए तो जमीलतुन जमीलतन हो जाएगी। अलबुयूतु को अलबुयूता किया जाए तो अलजमीलतु अलजमीलता हो जाएगी। मदरसातुन को मदरसातिन किया जाए, याद रहे मदरसातिन मंसूब है तो जमीलतुन जमीलतन हो जाएगी। अलमदरसातु को अलमदरसाती किया जाए तो अलजमीलतु अलजमीलता हो जाएगी। ये हो गए मंसूब। अब मजरूर कैसे होगा? बैतन को अगर बैतिन किया जाए तो जमीलन भी जमीलिन हो जाएगी। अलबैता अगर अलबैती हो जाए तो अलजमीला अलजमीली हो जाएगी। मदरसतन अगर मदरसतिन हो जाए तो जमीलतन भी जमीलतिन हो जाएगी। अलमदरसता अगर अलमदरसती हो जाए तो अलजमीलता अलजमीलती हो जाएगी। मुसन्ना मंसूब और मजरूर एक ही तरह होता है, लिहाजा इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और जमा के अंदर क्योंकि तकसीर जमा है बुयूतन, इसलिए बुयूतिन होगा, लिहाजा जमीलतन जमीलतिन हो जाएगी। अलबुयूता अगर अलबुयूती हो जाए तो अलजमीलता अलजमीलती हो जाए। फिर से देखिए मदरसातिन में कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि मदरसातिन मंसूब भी इसी तरह लिखा जाता है और मजरूर भी इसी तरह लिखा जाता है। ये गैर आकिल है और इसकी नात वाहिद मुअन्नस आएगी, लिहाजा जमीलतन में तब्दीली हो जाएगी, वो अब मजरूर हाल में आएगी। जमीलतन से जमीलतिन हो जाएगी। हमें मदरसातिन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरह हम पहचान लेंगे कि इस वक्त मदरसातिन मजरूर हाल में है। अल मदरसाती में भी कोई फर्क नहीं होगा मगर अल जमीलता अल जमीलती हो जाएगी। इस तरह हमने देखा कि नात हमेशा अपने मनूब की पैरवी करती है सिवाय गैर आकिल जमा के, वहाँ पे वो वाहिद मुअन्नस में आएगी। दो लफ्ज लेते हैं, बैतुन कबीरुन। बैतुन का मतलब घर, कबीरुन का मतलब बड़ा। अब यहाँ नोट कर लीजिए कि उर्दू में घर बाद में है और बड़ा पहले है, अरबी में बैतुन पहले है और कबीरुन बाद में है। कबीरुन नात है और बैतुन मनूत है। अगर बैतुन को मुअय्यन कर ले, नोट कीजिए कि दोनों गैर मुअय्यन है। अगर हम बैतुन को मुअय्यन कर ले मतलब अल बैतु कर ले और कबीरुन में कोई तब्दीली न लाए तो ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। अल बैतु मुब्तदा हो जाएगा और कबीरुन खबर हो जाएगी, लिहाजा तर्जुमा होगा घर बड़ा है। ये पूरा जुमला इस्मिया हो गया। अब हमें कहना है खूबसूरत घर बड़ा है, तो हमें नात लानी होगी अल बैतु के लिए, और वो क्या होगी नात? वो वाहिद होगी, मुज़क्कर होगी, मरफू होगी और मुअय्यन होगी, लिहाजा अल जमीलू आएगी। और वो कहाँ आएगी? अल बैतु के बाद आएगी, लिहाजा हम उसके लिए जगह बनाते हैं। अल बैतुल जमीलु कबीरुन, अल जमीलु नात है, अल बैतु मनूत है, पूरा होगा खूबसूरत घर बड़ा है। फिर से दो लफ्ज लेते हैं, बैतुन मतलब घर, जदीदुन मतलब नया, क्या बना? नया घर, मतलब जदीदुन नात है, बैतुन मनूत है, दोनों गैर मुअय्यन है। अगर इसके आगे हाजा लगा दे, ये इस्म इशारा है, इसका मतलब ये होता है हाजा चूँकि इस्म इशारा है, ये मरफू है, मुअय्यन है, मुज़क्कर है, ये मुब्तदा होने की सारी शर्तें पूरी करता है, लिहाजा ये जुमला इस्मिया में तब्दील हो जाएगा। हाजा मुब्तदा है और बैतुन खबर है, तर्जुमा होगा ये नया घर है। फिर से लेते हैं बैतुन मतलब घर, इसके आगे अगर हम जर्फी लगा दे तो बैतुन से बैतिन हो जाएगा और घर में जार मजरूर हो गया है। अब अगर इसके आगे ज़माइर अना लगा दे मतलब मैं, तो ये जुमला इस्मिया हो गया, अना मुब्तदा है और जार मजरूर खबर है, मैं घर में हूँ। अब अगर इसके आगे नात लाई जाए बैत के लिए जदीदुन, तो बैतुन नात है और चूंकि ये मजरूर है लिहाजा जदीदुन भी जदीदिन हो जाएगी। मैं घर में हूँ की बजाय अब कहना होगा मैं नए घर में हूँ, और ये नात कहाँ आएगी? उर्दू में पहले लिखते हैं, लिहाजा हमें घर से पहले जगह बनानी होगी। मैं को थोड़ा हटाते हैं और नए को वहाँ लिख लेते हैं, मैं नए घर में हूँ। अना फी बैतिन जदीदिन, मैं नए घर में हूँ। फिर से लिखते हैं बैतुन मतलब घर, अल मुदर्रिसु मतलब उस्ताद। अगर उस्ताद का घर कहना है तो हम जानते हैं कि हमें मुदाफ इलैहि बनाना होगा, लिहाजा बैतुन से बैतु हो जाएगा और अल मुदर्रिसु से अल मुदर्रिसी हो जाएगा। अब अगर हमें कहना है नए उस्ताद का घर मतलब अल मुदर्रिसी मनूत है और हमें उसके लिए नात लानी है, तो नात उसकी पैरवी करते हुए अल जदीदी आएगी। अब हमें फिर से बनाते हैं, उस्ताद का घर बैतुल
बैतुल मुदर्रिसी। अब हमें कहना है उस्ताद का नया घर, उस्ताद पुराना है, घर नया है। पहले इसमें हमने जो किया था उसमें घर पुराना था, उस्ताद नया था, तो इसे कैसे बनाया जाएगा? मतलब बैतु मनूत है और उसके लिए नात आनी है, लिहाजा हमें पहले जानना होगा कि बैतु मुज़क्कर है, मरफू है, वाहिद है। चौथी प्रॉपर्टी जो है उसकी, ये मुअय्यन है या गैर मुअय्यन है, हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुदाफ अल नहीं ले सका है, इसलिए हम तयन नहीं कर सके कि ये मुअय्यन है या गैर मुअय्यन है। तो याद कीजिए कि हमने मुदाफ मुदाफ इलैहि के लेसन में कहा था कि इसका एक उसूल है, अगर मुदाफ इलैहि मुअय्यन है तो मुदाफ को मुअय्यन माना जाएगा। मतलब क्योंकि अल मुदर्रिसी मुअय्यन है इसलिए बैतु को भी मुअय्यन माना जाएगा, हम गैर मुअय्यन को हटा देते हैं। तो असल में बैतु अल बैतु है और ये मरफू है, लिहाजा नात जदीदुन जो उसकी फॉलो करते हुए आएगी वो अल जदीदु आएगी। अब अगला मसला है इसे रखा कहाँ जाए। हम जानते हैं कि नात अरबी में बाद में आती है, ये पहले नहीं आ सकती, तो क्या इसे दरमियान में रखा जाएगा, मतलब जगह बनाई जाएगी? तो मुदाफ मुदाफ इलैहि के बीच में जगह भी नहीं हो सकी, लिहाजा इसे मुदर्रिसी के बाद रखा जाएगा। बैतुल मुदर्रिसिल जदीदु, उस्ताद का नया घर। पहले इसमें हमने देखा था अल मुदर्रिसी के लिए जो मनूत है उसके लिए नात आ रही है और अल मुदर्रिसी मजरूर है, लिहाजा नात भी मजरूर आई। दूसरे इसमें बैतु मनूत है और नात उसके लिए आ रही है, क्योंकि बैतु मरफू है, अल जदीदु भी मरफू है। अल का हमने अभी सीख लिया कि अल और बैतु में अल नहीं है और अल जदीदु में अल क्यों है। अब अगर हमें कहना है नए उस्ताद का नया घर, मतलब उस्ताद के लिए भी नात है और घर के लिए भी नात है। उस्ताद के लिए नात जो हमने पहले मुरक्कब में देखा था वो मजरूर आई थी अल जदीदी, लिहाजा अल जदीदी ही लानी है, मगर इसे रखना कहाँ है? तो यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, क्योंकि बैतु के लिए जो नात आई है और बैतु पहले है इसलिए उसकी नात पहले आएगी, और अल मुदर्रिसी जो बाद में है इसलिए उसकी नात बाद में आएगी। बैतुल मुदर्रिसिल जदीदुल जदीदी, नए उस्ताद का नया घर। लिहाजा इस पूरे सबक से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है और वो है कि नात हमेशा पैरवी करेगी मनूत की, मतलब वो उसके रंग में रंग जाएगी। लफ्ज की चारों खुसूसियात में सिर्फ एक इस्तिस्ना है और वो गैर आकिल और आकिल की है कि अगर मनूत गैर आकिल जमा है तो उसकी नात वाहिद मुअन्नस आएगी। इस तरह हमने नात मनूत को सीख लिया है। अब हम अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह बदल को सीखेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।